So thank you once again. And uh, see, I did, as ma'am said, B.Ed and M.Ed and M.A. from Aligarh Muslim University. And uh, I have been working in teacher education department at Maulana Azad National Urdu University uh, for last uh, 24, 23 to 24 years. Earlier, I was there in Sibli National College, Azamgarh. Um, so by chance or by choice, I don't know. Most of the things I can say by chance, I came in this field. And since joining, I realized that teaching is one of the best field. And I'm fortunate that I got the opportunity to be a teacher. So with this experience, when ma'am asked me to share your experiences and some topic, then naturally I chose one of the topic which is very hurting and which is very touching and which always says something to with the people who are involved in education, that where is our higher education system is there. And most of the time we came across many types of questions that our higher education system is not up to the mark, and we could not get some rank in the world ranking orders, and also some shortcomings we feel time to time. So in this context, we have just chosen this topic, and I hope that we will have a experience sharing session, and all of you have experience. This is the refresher course, as and when you feel some kind of doubt, clarifications, and if you want to share your experience, you will raise your hand, and we will just discuss it. But just a little presentation I want to present before all of you, and that see, being the student of education, we see that really education is a gift for we the human beings, and it is a process which develop our personality, and also we become able to fulfill all our possibilities by getting good education. So one of the scholars, John Dewey, said that it is not the preparation of life, but it is itself a life. In this context, we see that education is a unique kind of gift we are having, and we are fortunate that we are called educated people in our society, and somehow we are involved in the education system of our country. But when we come to know our country, naturally we go back some in our past, then we feel a kind of proud and pride that we have a glorious past, like our if we start from Vedic system, then being the student of history, we if go to the Vedic system, their system was also somehow very good. All the systems, Buddhist period was also very good. At that time, we started a residential system of education, and Nalanda is there in Bihar. We visited many times. You see that during the Buddhist period, the Vedic period, Jainism period, and also in Islamic period, education was very fair, and somehow it was related to the realizations of the self, character building, doing something for the society like this. And a little bit change occurred when the Britishers came here, and from there we see that it has some kind of self ambition, self goal of the government, and it was clearly mentioned, and it may be felt from all the rules and regulations made by the British government from 1773 onwards, like in 1838, and then after 1835, we all know that what Macaulay written to his sister, that by introducing English as a medium of education, we want to create a group of people who will be Indian by
blood and color, but they teach us by opinion, by intellect, by choice, by behavior, like this. So from there, we see that education has been used somehow for some system gains, some personal gains, and character building was not there, and our values a little bit distorted from here. And then after 1854 wood dispatch, and after 1857, when the university system came into existence, though it was you see that it was an ambition to start it on the basis of Oxford and Cambridge, but all our three universities, Madras, Calcutta, and Bombay, started well, and it got boosted up during the time of Lord Curzon in 1902 and 1904 education's policy. And then after our education systems, higher education system I'm talking about, came to end in 1947. At that time, we had 19 universities. But fortunately, our country made a very unique and very comprehensive and very, very beautiful um, constitutions, which given full right to our education system. Either it is article 15, 17, 28, 29, 30, whatsoever, 45 at that time. Now it is 21 para a. Mother tongue issues is there in 350, Hindi language is there in 351. All these things were included in our education, our constitutions, in 63, 64, 65, 66, all made education rights to the central government. And fortunately, we adopted democracy after independence, not only as a form of government, but also as a way of our life. And we Indian, however, mentally become democrat. We becoming given a space to the thinking of our colleague, other peoples, and we all Indians willing to make India a developed country. But time and again, we are setting the goal to become the developed country, and still we have set that by 2047 we will be the Viksit Bharat. In this scenario, we see that which is the instrument to become the a developed nations, then naturally it is our education system. So this is the point where we think that we have so sound and high culture, heritage, past of our education system. But what is there? What are the problems is there? We are the third largest country in the field of education, and also the largest democratic country in the field in the world. And also our mind, our knowledge is appreciated everywhere. But in this context, what is the issues? What are the situations which hinder us, which could not make a success to become a developed nation, and why our education system is not known as the best system of education, particular higher education system? So in this context, I just chosen this topic, and sorry, just uh, um, in these situations, you just a few minutes I will also take to just set the setting context of this topic, that say that we have a imagination that our farmers, our all peoples will be educated, so that they can work their own work at least, and adult education system, and like many things imagined and developed and started by our country. In the same way, in 2005, National Knowledge Commission's um, recommended to make India a knowledge-based society. And now 2020, we are calling to make a superpower
knowledge of the country, a wish guru like this. So, what should be the pedagogy, and what should be the methods? Which will fit the system so that it can become knowledge based society, or the wish guru, or knowledge power, or superpower. As a teacher of higher education, time and again, we all the participants, we all the faculty members have this sense in one way or other, direct or indirect. But these are the some things which was in our mind. So in this backdrop, we just taken this topic. So see, just at a glance, that it is said that our peoples who are involved in learning, teaching, and education process is equal to the population of America. It is about 35 crores students, teachers, and all the stakeholders involved in the in the education systems. Right now, on an average, we are having more than 1,100 universities. You can see many central universities are already one universities in at least one state. Many state universities, private universities, deemed universities, and institutions of national importance. We, on an average, graduated more than 70-80 lakh students per year, and more than 4 crore students are engaged in higher education system. So you see that how a big our education system is ours. If it will be a quality education system, it will, if it will be a developed education system, then you can imagine that हम कहाँ हो सकते हैं. So this is the things where we are standing right now. But at the same time, having so developed nations, geographically very vast country, population is just we are crossing China. And in this scenario, there are some questions. हम लोग मैं सोचता था कि हम हमारे मतलब we have already completed 24 years of the service. 2001 में ज्वाइन किया था. 2-3 साल एजुकेशन को समझने में ही टाइम लगा कि इसमें करना क्या है, पढ़ाना है या तेज बनना है. बट वेरी सुन वी रियलाइज दैट इट इज ए सोशल सर्विस, एंड इसमें बहुत कुछ हम लोगों को खुद करना है. Nobody is there. Many more things is our responsibility, and we are accountable for that in our society. तो इसके बाद भी we see that these are still the challenges of our education system, and that is access. You see that still we could not have such a provisions, such a facilities to make access higher educations to all. We have an ambitions of achieving 50% gross enrollment ratio by 2035. Right now we are around 29 like this. So by 25 we have the target of 50%. So still we are, though it is a practical target, but unfortunately हमें अभी बहुत आगे के लिए देखना होगा कि ये कैसे है. दूसरा, equity is one of the beautiful term we the people using in our education system, and the way we will become experienced, we realize the importance of the word equity, particularly in our Indian education system. Though constitutional provisions is there, many social efforts are there, NGOs is there, government determination is there, commitment is there, teacher efforts is there, but still now we can say that अभी भी अपने यहाँ जो बहुत सारे ST SC और OBC या माइनॉरिटी, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इस चीज से सोचने से आगे वक्त नहीं मिलता है कि 2 वक्त की रोटी के आगे कैसे
क्या किया जा सकते हैं? दे बिगिन फ्रॉम द वक्त की रोटी एंड दे एंड to the वक्त की रोटी. Many issues are there, many provisions are there, government making all efforts, but the fact is this, that many peoples are not getting education system as in their own convenience, as per their own setting, as per their own values, as per their own systems. Reservations policies is there, many things is there, but this is just a word which always hurt us when we see that how much diversity is there, how much gap is there, and what are the issues are there. इस दुनिया में एजुकेशन में जितना हमने देखा, उसमें दिन ब दिन जैसे जैसे मैं 9 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, यूनिक काइंड ऑफ बच्चे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो लड़कियां अपने जहेज का पैसा जो रखा होता है उससे पढ़ने आते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करेंगे, इस वजह से वो मेहनत करके जीआरएफ कर लेते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं, जो आ नहीं पाते हैं। सो व्हाट कुड बी डन फॉर मेकिंग दिस वर्ड रियलाइज एज आवर ड्रीम, कि इसको सही कर दें, that is equity and affordability is also there. You know that 1964 कॉमन में कोठारी कमीशन ने कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात किया था, but still it is our dream. We could not success to make our education system as a common education system. Now we are talking about public private partnership system. So see what types of affordability is there, how many percentage of people are able to afford, though government education system is very cheap, very low price education system. We cannot claim and we cannot blame, but it is the time we should realize that how far and how much it is affordable for all the peoples of this country. So this is also a challenge to us, for us. इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो इंक्लूसिव एजुकेशन और बहुत छोटा सा स्पेशल एजुकेशन, उदय शंकर की किताब वगैरह हम लोग पढ़ते थे कि व्हाट इज, फिर इंटीग्रेशन सिस्टम पढ़ा, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने रटा, समझा। बट जैसे जैसे we progressed, we got experience. Now we are realizing the meaning of inclusive, what is inclusiveness is there. So this is also a challenge for our education system, particular higher education system, to make such a such a system or develop such a system where inclusiveness must be reflected, and ये एक challenge है। क्वालिटी एजुकेशन मैं बहुत चाहा, खोजा कि व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन किसे कहेंगे, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। सो वी हैव रिटेन इट जस्ट फॉर अस, दैट ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंस्ड पीपल्स हैविंग so many years experience. So we will discuss that what exactly quality education mean, and where we stand in the field of quality education. So this is what and then in between we see that fortunately after 34 years long gap, we got ultimately a national policy on education in 2020, and the chairman of the commission is well educated, Kasturi Ranjan ji, which identified our students' uniqueness, our capacities, and also we remember that if you go to the Kothari commissions, that also at that time in 1966 recommended that there is an urgent need to transform our education system and relate it to the life, needs and aspirations of the pupil. स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस जरूरत से उसको जोड़ा जाए, and this is one of the beautiful sentence. Still we are working to relate our education system to the aspirations and ambitions of our students. So this commission also realized and identified the uniqueness of the students,
and it has many more things it has recommended. All we know it, and many times we have gone through the national education policy like this. But some of the features which is very notable and very is need of the hour, that is the holistic system of education and multidisciplinary system of education. So life skill is also we will discuss one of the important component now in it is use of technology. So national educational technology forum is recommended by NPE, and also diversity, respect of the local context, local languages, and Indian languages, Indian knowledge society, many more beautiful things recommended by the in national education policy. In the same way, it has also emphasized which we are talking, and that equity and inclusion कैसे हो सकता है. Faculty, see, many times we discussed, and we are a teacher, so this is the right platform. We should appreciate ourselves that faculty is still the center of our education system. It was the center of our education system, and still it is a center of education system. Mudaliar Commissions recommended in a teacher education column that if we have everything, good schools, good laboratories, good land, and every good infrastructures, every good things, but if teacher is not good, then our education system is will be failure. So teacher is playing a pivotal role, a crucial role in our education system. So same accepted by the national education policy. And one of the good things that regulatory body, see, we all are the teachers, we all will have this feeling that in our education system many regulatory bodies are there. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे के इसको आगे बढ़ूं कि आप यूजीसी फैकल्टी को अप्रूव करती है, द लिस्ट ऑफ फैकल्टी granted by the UGC. And in a UGC, there is a provisions of contractual faculty, guest faculty, ad hoc faculties, and they somehow allow the institutions to appoint guest faculty as and when required. At the same time, if you are in AICT affiliated institutions, or if you are in NCT affiliated institutions, so if you go to the NCT, that have its own autonomous situations, and they will not allow you to have the guest faculty, whereas you are getting grant from UGC. So you have no way to go, and in these situations many things जो है वो काफी कम हो गया. एक और छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं. In a NCT rule, there is a provision that the land of the institutions will be on the name of the institutions के नाम होगा. स्टेट गवर्नमेंट में इन वेस्ट बंगाल द लैंड, जो गवर्नमेंट का लैंड होता था वो गवर्नर के नाम था, यू नो दैट. उसकी वजह से उस रूल के हिसाब से कई 100 कॉलेजेस बंद हो गए. फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया. तो ये एक बड़ा इशू था, जहां जितने प्रोफेशनल बॉडीज थे उन सभी के अपने रूल्स रेगुलेशंस की वजह से भी हमें सहूलत से ज्यादा थोड़ी दुश्वारी होती थी. तो दिस इज द first time, and the best efforts is made to have a one umbrella body that is called Higher Education Commissions of India, and that commissions have the National Higher Education Regulatory Councils, National Accreditations Council, National Higher Education Grants Council, National Higher Education General Councils, and professional setting bodies like AICT, NCT, VCT, National Vocational Councils, and many more things. So this will come under one umbrella. उम्मीद है कि कुछ इसमें फायदा होगा और कुछ कमी आएगी जो एक डिफिकल्टीज हो रही थी. So this is one of the best things. Our culture, knowledge, and our pride. यहाँ एक और चीज मैं बता के आगे बढ़ूं कि being the students of education, you see that जब भी हम लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े या बढ़े या देखा, तो हमें कहीं ना कहीं से एक फीलिंग दिखाई गई. जो भी बुक्स रिकमेंड किया गया, जो भी बुक्स बताई गई, वो सब आमतौर से अच्छे ऑथर का बताया गया.
अच्छे ऑथर का जो सिनोनिम्स बताया गया वो फॉरेन ऑथर्स इन जनरली, नॉट एवरी टाइम बट इन जनरली, एंड इन इन सच ए वे, जो एक माइंड है, जब आप दूसरों को देख के ही बड़े होंगे तो उस पर उसका असर होगा। तो दिस इज द टाइम एंड वी शुड रियलाइज एंड वी शुड नो दैट what is our culture and what are our values, what are ethos, what are traditions, how we brought up, उसके हिसाब से उसके वैल्यूज होनी चाहिए, और उसका एक सेंस ऑफ प्राइड ह्यूमन बींग्स को अपने आप में कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा उसको मैं इसमें भी मेंशन किया हूँ। ये थोड़ा अजब सा लगा, हम उस किताब को पढ़ने की कोशिश ज्यादा किए जिसको हम समझ न सके। तो ये एक कंट्राडिक्टरी वर्ड है, लेकिन मैं गांव का आदमी हूँ तो इसलिए ये बोल दिया। आज के वक्त में जो टेक्नोलॉजी का है उसके यूज का बहुत ही है। एजुकेशन इन इंडिया इज ए पब्लिक सर्विस। आपको ये जानते होंगे आप कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट शुरू किया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन को एक कमोडिटी माना गया था। एंड कमोडिटी मीन्स यू कैन हैव इट, यू कैन सेल इट, you can purchase it. So in this systems we have opened the space of all the कि आप इसमें जो है अच्छा खासा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं, एंड इट इज जो है वो ये होगा। इसी की वजह से आप देखेंगे कि 2012 में जब जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट एजुकेशन में आई, तो उसने कहा कि इन इंडिया मोर देन 10,000 institution is the stand alone institutions and which are selling the degrees on the cost of price। तो ये भी एक सच्चाई है। तो एजुकेशन जो है वो अगर प्राइवेट में आता है तो उससे भी हमें कितना लॉस है, फायदा है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो पब्लिक सर्विस इंडिया में एक वेलफेयर नेशन है जहाँ ये एक पब्लिक सर्विस है, ये फॉर्चुनेट है, अच्छा है, और इसे कैसे अच्छा किया जा सके ये भी एक सवाल है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन को आप देखेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा और अफसोस होगा और कभी कभी समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि 1964-66 की जो कोठारी कमीशंस थे, उसने उस वक्त में 66 में एजुकेशन का जो बजट था वो उस वक्त के जीडीपी का 2.9% था, और उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि बाय 1985 वी विल एलोकेट 6% ऑफ जीडीपी, एंड यू नो एंड वी नो that 2020 national policy of education also recommending the same, that we should allocate at least 6% of GDP for education systems. Right now we are rounding within 3% of allocations. It is 2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%. And so for higher education is concerned, it is 0.7% of GDP. So many things are there जिसको हम लोगों को यहाँ पे एक है जिसको हम देख सकते हैं। नाउ यू सी दैट एजुकेशन जो अपना सिस्टम है वो कितनी मतलब कितने तरह से एक टुकड़ों में बटा हुआ सिस्टम है, जिसकी वजह से भी हमें काफी दिक्कत होती आ रही है। एक के जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग देखेंगे, मेथोडोलॉजी देखेंगे या अप्रोच देखेंगे, उसमें वी फील इट मेनी टाइम्स दैट वी आर still emphasizing the mugging system, cramming system, memorization system, and like this. So जो एक values है उसमें हम मैं it may be my personal experience where we could not uh, give a space, full space where एक ओपन थिंकिंग हो, जहां हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हो, वो जो चीज है उसमें थोड़ा दिक्कतें आ रही है। एक रिजिड सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन था जिसको एनईपी ने एक्सेप्ट किया है, एंड नाउ इट हैज बीन given the opportunity to take subject of your choice। तो इस तरह से ये कुछ अच्छी चीजें डेवलप होके आ रही है जिससे हम
थोड़ा अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज की तरफ आपको ले चलूं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग इनिशिएशन from UGC also to give autonomy to our education institutions. But being a teacher, being a teacher where you are teaching, you will find that many restrictions are there. Many सिस्टम से जो है वो एक ऐसा है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं हो पाता है और टीचर्स को भी बहुत कम हो पाता है। जो एक कैरियर प्रमोशंस का स्कीम है जिसको हम क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, या फैकल्टी का या इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप डेवलप करने का एक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि उस रिपोर्ट के हिसाब से 40% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हेड एंड लीडर्स आर द सो कॉल्ड, जो उसको चला रहे हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट टू रन द इंस्टीट्यूशंस। तो वो लीडरशिप टाइप का अपने पास कुछ ऐसा बहुत ज्यादा वो आ नहीं पाता है। उसकी वजह क्या है कि इतना उसमें रिजिडनेस है, इतनी ब्यूरोक्रेसी है कि बहुत सी जगह पे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है जहां आपके इनोवेशन, आपके क्रिएटिविटीज, अपने आइडियाज उसके अंदर सिमट के रह जाते हैं। नाउ इन डेज UGC has initiated to give autonomy under the category of A and B, and some universities have been given this autonomy, like Central University of South Bihar, and our university is also given autonomy B. Means you have the autonomy with some limitations. So these टाइप ऑफ एफर्ट्स जो है वो शुरू हुआ है। रिसर्च में जब हम आते हैं तो मैं पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत मिस करके काफी एज हो गया, हमें अच्छे से रिसर्च करना चाहिए था। और जैसे जैसे हम इस फील्ड में सीनियर होते जाते हैं हमें एहसास होता जाता है कि एजुकेशन मीन्स, हायर एजुकेशन मीन्स रिसर्च एजुकेशन, और रिसर्च के बगैर हायर एजुकेशन का तस्वुर नहीं कर सकते हैं। और रिसर्च कैसा होना चाहिए, रिसर्च की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। यंग अब जो टैलेंट है उसका आप लोग एक उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर मैं जो फील करता हूँ कि हमारा रिसर्च, हालांकि नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन की है उसने जो इंटेंसिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज की बात की है, और पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम को ही वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करके अब जो है वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज और इंटेंसिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप देखेंगे कि जो एक प्रोफेशनल रिसर्च है, जो इसमें एकेडमिकली सोशल इम्पैक्ट है, या इंडस्ट्रीज से या अपनी सोसाइटी से उसका लिंकेज है, ये कितना है, किस हद तक है। प्लस गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट फंड है, स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है या रिसर्च का ग्रांट है, वो किस हद तक है। अगर आप सोशल साइंस में देखेंगे तो आपको ये देख के काफी ताज्जुब होगा। हालांकि उसमें हम लोग भी बहुत प्रपोजल नहीं बना पाते हैं, भेज नहीं पाते हैं, कम भेजते हैं। कि जो रिसर्च के लिए पैसा एलोकेट किया गया वो अच्छा खासा पैसा जो है वो हम साइंस एंड स्पेस में खर्च करते हैं। फिर एजुकेशन में DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ खर्च करते हैं। बहुत कम पैसा जो है वो हम रिसर्च में, पर्टिकुलर सोशल साइंस में खर्च करते हैं। तो रिसर्च एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, और रिसर्च के बगैर हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो रिसर्च का एक एटीट्यूड, इसका एक सिस्टम जो है डेवलप करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके इन्होंने बनाने की बात अपनी NAP में किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी काफ़ी हमें मदद करेगा आगे चल के। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ना जाके एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो एक फंडिंग, ग्रांटिंग एंड मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा। एक और अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ जो आप देखेंगे उसको समझने में आपको
अच्छा भी लगेगा, अफ़सोस भी होगा। आप देखिए वी हैव अ यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, व्हिच आर एफिलिएटिंग 300 कॉलेजेस, 350 colleges like this. How it can be managed? आप देखिए किस तरह का रिसर्च वहाँ हो सकता है, और हम लोग उसको खुद देखते आए हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर हमारा कॉलेज हुआ करता था, सिवली कॉलेज उसी के अंडर में था। मैं वहीं से एजुकेशन में पीएचडी किया जॉब में आने के बाद। तो जब द फैक्ट इज दैट वी आर गुड, our supervisor is good, all the peoples are good, but somewhere somehow is there, and that makes our system weak, और उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। तो ऐसे हालत में जो एक बड़ा पुल बना हुआ है एप्लीकेशन देने का, उसको उस पे हमें सोचने की जरूरत है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने, और इसके ऊपर भी कैसे हम अंडर ग्रेजुएट कॉलेज को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर उसको ग्रेजुअली जो है वो ऑटोनॉमी देके उसको इंडिपेंडेंट बनाने की बात की है। तो ये कुछ बहुत अच्छी चीज इसमें आया है, जिसको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। एक इसको वी आर ऑल्सो फीलिंग, हालांकि हम लोग उस लायक नहीं है कि इतने बड़े कमीशंस कमिटीज में मेंबर हों, अलबत्ता उनके जानने वालों के जानने वाले हम लोग हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। उनको अपनी बात कभी कभी बता देते थे जो बड़े लोग हैं, कि अब हम लोग ने हॉलिस्टिक और मल्टी सिस्टम में आने की बात किया है, और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट किया है, कर रहे हैं। 4 इयर्स डिग्री कोर्स बनाया है, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री का प्रोविजंस बनाया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड ऑनर्स विथ रिसर्च का प्रोविजंस बनाया है। फिर उसके बाद पीएचडी करने का एक सिस्टम बनाया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपने आप में बहुत अहम है, जो 7 साल तक के लिए वैलिड होगा, और आप उसको कहीं रख सकते हैं। फिर बहुत सारे कोर्सेस आप देखेंगे तो हमें पॉजिटिव भी होना चाहिए। बहुत सारी कोर्सेस, अच्छी कोर्सेस जो है इसमें की गई है, जो इश्यूज हम लोग फील कर रहे थे। सब्जेक्ट चॉइस का इश्यूज जो है वो हम लोग को फील होता था। एक बहुत दिन तक बच्चे पूछते थे कि सर ऑनर्स अगर हिस्ट्री है तो एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह का बहुत सा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीजें थी जिसको इस पॉलिसीज में कम करने की बात की गई है। इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की बात, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात, अभी यूजीसी ने उस पे काम भी किया है, हायर एजुकेशन काउंसिल ने उसको डेवलप भी किया है फ्रेमवर्क। तो इस तरह से एक काफी अच्छी कोशिश भी अपने पास हुई है, जिसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करके थोड़ा इसको आगे हिम्मत से बढ़ने की जरूरत है। इसमें एक जो फैकल्टी है इंस्टीट्यूशन से, उस पे उसका एक्सेप्टेंस रिसर्च फाउंडेशंस का प्रोविजंस, पूरा जो मैं बता रहा था हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोविजंस, जिसके अंदर में सबको लाना है। रेगुलेशंस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। किसी ने पूछा कि एनपीई का दो अच्छी चीज बताइए, तो उसमें जो अच्छी चीज लगा वो एक सबसे खूबसूरत लगा, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, आप अपने चॉइस का पढ़ सकते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें जो रेगुलेशंस है वो रेगुलेशंस भी काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब आप जो पहाड़ी एरिया है वहाँ आप पक्के के मकान का तस्वुर करें और उसके ऊपर ही आप उसको रिकॉग्नाइज करें तो मुश्किल है। तो बहुत सी जगह पे बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हायर एजुकेशन का एक बेसिक फेनोमेना होना चाहिए, जिसको अब हम लोग एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। फिर एक्सेस एंड इक्विटी की बात हमने किया, वो है। अब थोड़ा सा इसको देख के आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी कोशिश किया है। इफ यू गो बैक टू सी दैट रूसा बनाया है, राष्ट्रीय उच्चतर क्या है शिक्षा अभियान। अब ये 2013 में शुरू किया, और इसका पर्पस भी यही है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट को, सेंटर को या यूनियन टेरिटरीज को फंडिंग करें 60-40 के रेशियो में स्टेट्स को, या स्पेशल अगर है तो 19-10 के रेशियो में। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा कोशिश है रूसा का। उसी तरह से 2010 में
AI ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की शुरुआत किया गया, जिसमें कुछ पैरामीटर्स को रखा गया और उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक कोड दिया गया। द पर्पस वाज जस्ट टू नो द स्टेटस ऑफ आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द infrastructures, regarding the faculty positions and regarding the students, कितने स्टूडेंट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है। इस ताल्लुक से एक अच्छा सा ये देखिए ये कोशिश किया गया, जिसमें ये इंस्टीट्यूशन डिटेल, टीचर्स का एक डिटेल और एक जनरल जो है उसको इसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसका एक कोड है। तो एक अच्छा सा डेटाबेस जो है वो तैयार हो गया और आज के डेट में काफी इसका हमारे पास रिपोर्ट आता है, इसका एक रिजल्ट है। आप सभी का इंस्टीट्यूशन इससे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड होगा। दूसरा एक और कोशिश किया गया 2015 में, जो कि NIRF का था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और जिसको देखने में अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, और इंस्टीट्यूशंस को इसको फिल करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन यह है कि उसमें हम लोग डेटा फिल करते हैं, जिसमें टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एम्प्लॉयमेंट, इसका आउटरीच क्या है, इन सब को अच्छी तरह से जानने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जब इसका फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, ये देखिए, तो उस वक्त भी हमें काफी चीज मांगा जाता है, जिसमें हमें एहसास होता है कि एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वेयर वी स्टैंड एंड एज ए टीचर्स हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आउटकम क्या है, हमारा इनरिच आउटरीच जो प्रोग्राम्स है अपने सोसाइटी में, वो कितना है, वो कितने को हम ला पाए हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हुई, और इसके साथ साथ बहुत सारा बूस्टअप प्रोविजंस भी गवर्नमेंट ने चलाया कि NIRF रैंकिंग इतना होगा तो ये होगा, इतना होगा तो ये करेंगे, और इससे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम अपना मुझे लगता है कि काफी हद तक एक बूस्टअप हुआ। और आज के दौर में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक दौड़ मची हुई है, कॉम्पिटिंग ईच अदर डेट कौन क्या आता है। तो इसमें जो है सभी इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी क्वालिटी में भी इसमें फायदा हुआ है। इसके बाद जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था, वहां पे आते हैं, ताकि IQAC पे शुरू करें। 1986 की पॉलिसी में ये चीज को बार बार जिक्र किया गया था, बहुत खूबसूरत पॉलिसी है, 29 पेज का या 30 पेज का, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को टच किया गया था। उसमें हायर एजुकेशन में बिलखसूस क्वालिटी को मेंटेन करने की बात की गई थी। ऑन दिस रिकमेंडेशन यूजीसी ने अपना एक ऑटोनोमस 1994 में जो NAAC बनाया, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जहाँ एक टीचर और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कम इस बेंचमार्क को फॉलो करने की कोशिश करें। हालांकि अभी NAAC ने राधा कृष्णन कमेटी अपॉइंट किया था, और उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से नाउ वी आर मूविंग टू द बाइनरी सिस्टम ऑफ एक्रेडिटेशंस वेयर यस एंड नो होगा, और फिर 5 इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें ग्लोबल एक्सीलेंस तक हम जाएंगे। लेकिन अभी NAAC में देखिए तो कुछ कॉलम बनाया है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप लोग जानते भी होंगे, मोस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन इज NAAC accredited institutions and most of the people knowing it very well, बट इसके बावजूद आप देखेंगे कि एक छोटा एक एस्पेक्ट है, करिकुलम का एस्पेक्ट है। सो एज ए टीचर्स हमारा उसमें क्या रोल होता है, कितना हम डिस्कस करते हैं, कितना हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, उसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है, कोर्स का आउटपुट क्या आता है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स क्या आता है, टीचर्स के पास कितनी फ्रीडम है उसको इम्प्लीमेंट करने में, टीचर्स का कितना रोल है करिकुलम फ्रेमवर्क में, करिकुलम प्लानिंग में, करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशंस में, और उस करिकुलम से बच्चे ने कुछ सीखा उसको जानने में। तो ये एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें करिकुलम के ताल्लुक से इसको कॉलेजेस को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं, बट जो यूनिवर्सिटीज है दे हैव मच मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम
टू हैव इट्स ओन करिकुलम इन लाइन विद द यूजीसी नॉर्म्स, और उसके हिसाब से जो है वो अपनी बातों को उसमें रखते हैं। तो ये एक अच्छा सा एस्पेक्ट है जिसमें हमें देखना चाहिए। एक टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स एवेल्यूएशंस की बात है। टीचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स कौन सा तरीका अपनाता है, ब्लेंडेड। आज का ज़माना देखिए, कोविड में हम लोग जो अच्छा से नेट नहीं जानते थे उनको भी पढ़ाना पड़ा नेट से, गूगल मीट से। और हम लोग गाँव में मतलब आई कैन नॉट से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो शायद हम लोगों ने एग्जाम लिया और उसमें बच्चे जो है वो हमने फैसिलिटेटर्स ऑनलाइन अपॉइंट किया और बच्चे जो है ऑनलाइन एग्जाम दिए। और नेटवर्क नहीं रहने की वजह से कहीं-कहीं बच्चे कहाँ-कहाँ, किसी-किसी के घर पे। तो ये लर्निंग और टीचिंग का एक यूनिक है जिसमें टीचर्स नोज़ कि लर्निंग कितना प्लेस कर रहा है, बच्चे से क्या कोऑर्डिनेशंस है, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशंस है, टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहा है, कौन-सा तरीका अपना रहा है जो उस हिसाब से सूट करे, और उसका एवोल्यूशंस का क्या-क्या तरीका है, इंटरनल एवोल्यूशंस है, कॉन्टिन्यूअस है, उसका उसमें वो कौन-कौन सा तरीका यूज़ कर रहा है, उसको रिव्यू करने का क्या तरीका है। बच्चों को हम लोग बच्चों को कॉपी, एक सिस्टम चला कि बच्चों को हम कॉपी दिखा दिया करेंगे, बच्चे कॉपी देख लेंगे तो फिर उसके बाद हम उससे डिस्कस करेंगे, देन जो है अगर बच्चे का क्लेम सही होगा तो हम जो है वो उसको फाइनलाइज करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट के टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशन। इसमें कॉलेजेस में ज़्यादा है, चूँकि कॉलेज में हम लोग टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम टेबल को फुल्ली फॉलो करते हैं, एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग बच्चे जब आते हैं तो इंडक्शन मीट करते हैं, उसका प्रोफाइल तैयार करते हैं, और उसके हिसाब से उसका चॉइस जानते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग कोई कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या उनको पर्टिकुलर कुछ स्पेशल सिचुएशंस होता है, तो वैसे हालत में हम लोग उस बच्चे के नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा उसका क्राइटेरिया है, एक पॉइंट है जिसके हिसाब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एंड कम्युनिटी आउटरीच, रिसर्च के ताल्लुक से भी हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या आउटपुट है, हमारा साइटेशंस क्या है, एच इंडेक्स क्या है, या हमारे पब्लिश्ड वर्क कितने हैं, प्रोजेक्ट हमारा कितना है, कंसल्टेंसी हमारी कितनी है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन से ने अभी क्या किया कि वो सीड बॉल तैयार किया और पूरे सोसाइटी को अडॉप्ट किया, और उस सोसाइटी में जाके वो प्लांटेशन करना जो है वो शुरू किया। तो जो जो भी हो, एक अच्छा सा पहलू था। एक इंस्टीट्यूशन से त्रिपुरा में मैं गया था, उसके जो ऑनर थे, जो क्या कहते हैं, वो थे जो मेन थे, उनका डेथ कोरोना में इस वजह से हो गया था कि उन्होंने घर-घर जाके अपने इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो मास्क और कुछ सामान जो है बाँटना शुरू किया था, और उनके बच्चे भी मास्क लगा के बाँटना शुरू किए थे। जब कोविड शुरू हुआ तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे बुलाया, और हमारे पास आईटीआई है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा वो तैयार कीजिए जिसमें हम अ, जो है वो बगैर किसी को टच किए हुए जो है वो लगा लें, हाथ में जो लगाते थे, क्या कहते हैं उसको, और उसमें हमें टच नहीं करना पड़े, या टॉयलेट हम जाएँ सैनिटाइजर। जी, सैनिटाइज़र जी, थैंक यू। वो हमें टच नहीं करना पड़े। सो सी उसके लिए जो है एक सोसाइटी का जो या सिस्टम का जो एक्सपेक्टेशन है वो नेचुरल है कि एजुकेशन सिस्टम से है। वो आउटरीच प्रोग्राम क्या है, एक उन्नत भारत में अडॉप्ट करने का सिस्टम शुरू किया। हम लोगों भी ने भी अडॉप्ट किया। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन ने गाँव को अडॉप्ट किया, कुछ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने और ख़ास हमने भी वैसे ही अडॉप्ट किया। बट अब हम उसमें कुछ हेल्थ अवेयरनेस और सफाई अवेयरनेस और छोटा-छोटा सब कुछ-कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये एक बड़ा-सा है कि रिसर्च हो, सोशल इम्पैक्ट का रिसर्च हो, इंडस्ट्रीज़ का लिंकेज का हो, बल्कि उसका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ-साथ जो है उसमें जो है आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोगों का
कुछ न कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए। एक और है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, और उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस उसको फुलफिल नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि नीपा को यूनिवर्सिटी बना दिया, फिर इंस्टीट्यूट बना दिया। ये बड़े लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। छोटे लेवल पे तो हर दिन कितने 100 इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन मिलता है, फिर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो बेसिक नॉर्म्स है, वो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं आजमगढ़ में सिविल नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया था, वहाँ एजुकेशन बीए भी चलता था, उसमें 250 बच्चे एडमिट थे। तो मैं सोचता था कि अगर सब आ जाए तो कहाँ बैठेंगे। तो हकीकत यह है कि आज के वक्त में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का टाइम है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी हम बना लें, डिजिटल क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम है, इसमें 500 तक हम लेके बढ़ा सकते हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन जो मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का ग्राउंड होना चाहिए, एक खुला इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें हमारा इंस्टीट्यूशन किस हद तक सक्सेस है, ये एक यूनिक चीज है जिसमें हमें देखने की जरूरत है। सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन फ्री। आज के वक्त में आप देखिए, हम लोग खुद इसको एहसास करते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे। नाउ वी आर रियलाइजिंग कि जो ये है गर्मी है वेदर का, वो कितना कुछ न कुछ आप पेपर देखेंगे तो कहेगा कि इस साल सबसे ज्यादा हो गया है, इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये क्या पता, एक लेमैन की तरह अगर सोचें तो आने वाले 5 साल के बाद ये कौन से रिकॉर्ड पे रहेगा। तो हम लोग उस हिसाब से कितना, जब रीजन अब जानेंगे तो यही बताया जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन है, हम उसको बेतहाशा डिफॉरेस्टाइज कर रहे हैं, काट रहे हैं पेड़ पौधों को। तो इन सब हिसाब से कुछ न कुछ चीजें है जिसमें कि ये शुरुआत भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही हो सकती है। प्लास्टिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री, प्लांटेशन के साथ, ये सब चीजें हम कहीं और नहीं कर सकते हैं। दिस इनिशिएशन कैन बी टेकन ओनली फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और इसका ऑडिट या जो भी हो, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ही मुहिम हो सकती है। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये एक यूनिक इशूज है। इस पे काफी आपके पास जानकारी होगी, काफी काम हुआ है। बट हकीकत ये है कि हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम अगर बहुत क्वालिटी का नहीं हो पाता होगा या हो पाता है, तो इसमें जो एक बड़ा रोल हो है वो कहीं ना कहीं से हमारे गवर्नेंस का है, हमारे लीडरशिप स्टाइल का है, और हमारे मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लीडरशिप बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, लीडरशिप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं से अच्छी खासी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। वेलफेयर का सेंस होना चाहिए। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, मैं टीचर एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, हमारे यहाँ 85% से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है अपने एनसीटी के लिस्ट में। उसमें आप देखेंगे तो जो वेलफेयर का निज़ाम है, जो टीचर्स के लिए जो सहूलत है, वो बिल्कुल आपको ना के बराबर मिलेगा। और एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आपको नजर आएगा। आप वहाँ देखेंगे कि छुट्टी का हो, या लीव, या वीमेंस का लीव, या चाइल्ड केयर लीव, या जनरल लीव, या पैसे का, मतलब आप सोचेंगे कि आप 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तो उसके लिए कौन सा सिस्टम, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत कोशिश किया है, सैलरी में काउंट देना, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना, बट इसके बावजूद अगर सच समझा जाए तो ये सब कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो नहीं पाई जाती, ये सब चीजें पाई जाती है। सो देयर मस्ट बी ए ट्रांसपेरेंट, डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इस पे कैसे क्या करना, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोग को टाइम मिलेगा तो देखिएगा। इंस्टीट्यूशंस का अपना वैल्यूज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आज के वक्त में आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को यूज करने को बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज जो है आज के वक्त में कंपल्सन है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एक ने क्या किया कि वो ऑनेस्टी सोप बनाया, एक ने बहुत सारा कंप्लेन कंप्लेन बॉक्स बनाया,
बहुत से जगह पे बहुत सी चीज़ हम लोग लिखते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और उस इलाके में जहाँ अपना इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए कि व्हाट शुड बी द थिंग्स हम इसको कर सकते हैं ताकि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हो और लोगों को आने के लिए। जैसे एक इंस्टीट्यूशंस में मैं गया, वहाँ ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट थे एंड मोस्ट ऑफ देम देम जो है वो मैरिड थी। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में बेबी केयर सेंटर होने चाहिए। तो आप इंस्टीट्यूशन से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जी सर, काफ़ी जेंट्स जो है ना, जब हम कंपलसरी करते हैं क्लास में तो वो आके बच्चों को लेके रहते हैं। तो आप देखिए तरह-तरह का चीज़ें जो है वो ज़रूरत के हिसाब से हो सकती है। तो इसी 7 पहलू पे ये 1000 का टोटल नंबर नैक ने अपने हिसाब से दे दिया है और 1 से 150 के अंदर में डी मानते हैं, मतलब फिर से आपको जाना है, एवल्यूएशन कराना है और 150 से 2 के 1.5 से 2 तक जो है उसको हम सी कहते हैं और 2.1 से 2.5 तक को बी और इस तरह से आखिरी में ए प्लस प्लस तक हम जाते हैं, जिसमें नैक एक्रेडिटेशंस का एक सिस्टम है। मुझे लगता है कि ये आज के वक्त में कहीं ना कहीं से अच्छा सिस्टम है और ये एक एक्सटर्नल एजेंसी के जरिए जो है इसको एवल्यूएट किया जाता है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए एक खूबसूरत सा पहलू है जिसपे हम लोग मेन फोकस करना चाहते हैं और वो है IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। अब इसको आप देखिए कि ये ये एक सेल है जिसको इसका यूज़ जो भी हो, लेकिन आज के वक़्त में सभी इंस्टीट्यूशंस में ये है और सभी इंस्टीट्यूशन में ये ज़रूरी है। मैं इस टॉपिक को इसलिए भी एम्फेसिस कर रहा था कि एक तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, साथ-साथ हमें IQAC सेल के बारे में थोड़ी जानकारी भी हो जाएगी, क्योंकि एज़ ए प्रिंसिपल मैं 9-10 साल से ये पूछता रहता हूँ कि आप क्या काम करना है, वो आके बताते हैं। तो मेरी भी नॉलेज कम थी, तो मैं सोचा पढ़ भी लूँगा और डिस्कस भी कर लेंगे। नैक ने इसको 2007 में एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाने की बात की। अब IQAC सेल जो है ये आमतौर से हर इंस्टीट्यूशंस में जो नैक एक्रेडिटेड है वहाँ तो होना ही होना है और इसमें इसका एक कंपोजिशंस बनाया जिसमें ये कोशिश किया गया कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ही इसके हेड रहेंगे और एक अच्छी बात ये की गई कि जो सीनियर टीचर होगा जिसकी बात सब माने, चूँकि हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, बात मानना बहुत मुश्किल होता है। तो जो सीनियर टीचर होंगे उनके उसको इसका कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए और प्रिंसिपल इसका चेयरमैन हो। बाकी 2-4 टीचर एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें रख सकते हैं और सोसाइटी के 1-2 लोगों को रख लें और जो अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह है आस-पास में तो वहाँ के 1-2 लोगों को रख के एक खूबसूरत सा कंपोजिशंस जो है वो तैयार करने की बात की गई है, जो कि हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूशंस में लगभग ये पाया जाता है। अब इसमें जो इसका काम है वो 2 तरह का है। कहीं-कहीं इसको हम लोग 3 तरह का भी कर लेते हैं, लेकिन ये 2 ही तरह का, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसमें कहीं-कहीं थोड़ा सहूलत के लिए फाइनेंशियल वर्क भी कर लेते हैं, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल वर्क। अब नैक की स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे कि ये एक प्रोसीजर को डेवलप करता है जिसका मेन मकसद है कि अपने इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी को एश्योर करें और क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कौन-कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है, वो जो है डेवलप करने की कोशिश की जाती है। आम तौर से विद इन द IQAC हम लोग जो 7 चीज़ बताया, करिकुलम एस्पेक्ट, टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशंस, ये रिसर्च एंड आउटरीच और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह। तो ये 7 क्राइटेरिया में हम 2-2 लोगों को रख के उसका जो है देखने के लिए भी बना देते हैं कि भाई 2 लोग टीचर्स, अगर टीचर्स हैं तब क्राइटेरिया वाइज़ उसको देखें। प्लस एक कोर टीम होती है, जो टीम के बारे में आपको मैंने बताया। अब ये टीम जो है कई कमिटीज़ उसके अंदर बनाती हैं और उसके ज़रिए जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है इश्यूज़ और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की जाती है। तो नैक IQAC का पूरा का पूरी की पूरी कोशिश जो होती है, ये इस चीज़ पे होती है कि किस तरह से हम अपने इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी को मेंटेन करें,
इंस्टीट्यूशंस स्मूथ रन करे, एकेडमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली। तो इसके लिए जो है ये एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है और उसमें जो है उसमें ये कोशिश किया जाता है कि टाइमली, एफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस जो है वो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल टास्क में हो। दूसरा कि एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क की क्वालिटी मेंटेन हो, वो बढ़े, अच्छा हो, सभी के लिए एक्सेस हो और वो एफोर्डेबल हो। एक जगह में गया महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, वहाँ मुझे जो मैनेजमेंट था उसने बताया कि सर जो पैसे हैं वो पैसे बच्चे बहुत कम दे पाते हैं और हम उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पाते। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, शी वाज 64 ईयर्स ओल्ड। अ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिर मैं बच्चों से अलग-अलग जब मिला, तो बच्चों ने कहा कि हमें 3 तरह का स्कॉलरशिप मिलता है। एक तो एससी-एसटी का स्कॉलरशिप मिलता है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है एंड शिवाजी साहू जी करके कोई स्कॉलरशिप है, वो मिलता है। और बच्चों ने कहा कि चौथा स्कॉलरशिप भी मिलता है। वो स्कॉलरशिप ये होता है कि जिसका इसके बाद भी पैसा कम हो जाता है, वो हमारी मैम हमें इंतज़ाम करके कहीं न कहीं से सर दे देती हैं। आप यकीन जानिए ये सुन के मतलब और फिर उस मैम को मैं देखा, जो रिस्पेक्ट बढ़ा, यूनिक लगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आईक्यूएसी के जो चेयरमैन है उसको पूरा पता होता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, कौन से इश्यूज है। तो उसमें उसको इंश्योर करना कि इक्विटी हो और एफर्ट जो है करने का क्या क्या प्रोविजंस हो सकता है। अ, अ, इसमें जितना भी नए मेथड्स हैं, नए टेक्निक्स है, छोटा-छोटा वर्कशॉप कराना, छोटा-सा गेट टुगेदर हो जाना, ये सब करा के जो नए मेथड्स हैं, हम लोग टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, अक्सर जो है बहुत लंबा-लंबा मेथड्स की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ कम कर पाते हैं। तो जो मेथड्स वगैरह हैं उसके ऊपर छोटा-छोटा वर्कशॉप कराना। आपको मैं बताऊँ कि मैं एक प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ। अप्रैल तक कोऑर्डिनेटर था, अब खत्म हो गया। ये यूएनएफपीए का प्रोजेक्ट था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, पिछले 4 साल से। ये लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और इसमें बिहार के मदरसा के जो एडोलसेंस हैं, एडोलसेंट हैं, उनको 8वीं के बाद उनका पूरा ड्रॉप आउट, 90% ड्रॉप आउट था। उसको आगे ले जाने के लिए कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, उसके लिए हम लोगों ने 50 एक्टिविटीज़ तैयार किया था। उसमें सोशल वर्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस एक्टिविटी को तैयार करने के बाद हमने जो जॉन डीवी का एक्टिविटी मेथड पढ़ा था, अगर मैं सही हूँ तो, वो और अभी जो हमने एक्टिविटी तैयार किया वो, और उसको करने में जो हमने कोशिश किया, आप यकीन जानिए मुझे ऐसा लगा कि एक यूनिक मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम बहुत सारी चीज़ बहुत खूबसूरती से बच्चों को बता सकते हैं। जैसे हमने उसमें साँप, सीढ़ी और फिसलन का खेल किया और उसमें हमने पॉवर्टी लाया, अनएजुकेशन लाया, इल हेल्थ लाया, इलिटरेसी लाया, अनअवेयरनेस लाया और जिस तरह से साँप काटता है, कम एज में शादी लाया। तो अब उसमें वो ग्रुप बनता चला गया, किस एज में साँप काटा और उस वजह से शादी जल्दी हो गई तो एजुकेशन थोड़ा दिक्कत हो गया, या परेशानी, फिर अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर वो सीढ़ी की तरह छलांग लगा लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो यूनिक है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि अपने पास यूनिक अप्रोच, यूनिक मेथड है जिससे के ज़रिए हम बच्चे को बहुत एंगेज रख के उसके ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हिज़ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ को हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आईक्यूएसी है, उसको एक कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड आइडेंटिफाई the students' needs and capacities, and accordingly, they should also organize some types of methods and approach-based activities in a institutions। तो ये एक कर सकते हैं। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी मेंटेन करना आईक्यूएसी की कोशिश होनी चाहिए कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में किस तरह से क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया जाए। आपको पता होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन जब हायर एजुकेशन कमीशन 1948 में बना, तो उस कमीशन से पूछा गया कि इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव वन रिकमेंडेशन, देन व्हाट विल यू रिकमेंड? देन राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि आई विल रिकमेंड टू एलिमिनेट
आवर प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलता है कि हम सही में सही बच्चों को सही तरीके से जज कर पा रहे हैं या नहीं। एंड दिस इज ऑल्सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। तो एवल्यूएशन प्रोसेस में जो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए क्रिएटिविटी बनाए रखने की, ट्रांसपेरेंसी की, और सही बच्चों को सही जज करने की, वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दूं, गरचे मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ बट फिर भी, कि एज ए प्रिंसिपल मेरे कॉलेज में जब भी टीचर्स मेरे पास आए बहुत से, और उन्होंने कहा कि ये बच्चा सर नहीं पढ़ेगा, आप लिख लीजिए, बदतमीज है, बदमाश है, खराब है, जितना एडजेक्टिव था सब बता दिए। और फिर मैं हार गया। फिर उस बच्चों को जब मैं जानने की कोशिश किया तो मुझे ये समझ में आया, अब तक अपनी लाइफ में मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला, टाइम कम है नहीं तो मैं दो चार का एक एग्जाम्पल देता, कि वो बच्चे के पास एक अपने हिसाब की सलाहियत थी, उनके पास अपना काम था, उनके पास अपना मिजाज था, उनके पास अपना इंटेलेक्ट था। और वो बच्चे को थोड़ा सा, जो इस तरह के बच्चे थे उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने से, थोड़ा सा लाइन सही देने से, थोड़ा सा उनको हिम्मत करने से, थोड़ा उनको गुड कह देने से इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस हुआ कि मैं कह नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लेक्चर हमारे बच्चे बन गए जो उस कैटेगरी के थे, उनके बारे में। तो ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसमें जो बैड गुड और ट्रांसपेरेंसी है, जज करने का है, इसको आपको या हम लोगों को देखना चाहिए, और आईक्यूएसी को इस पे भी फोकस करने की जरूरत होती है। मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज जो इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे ऑप्टिमम यूज किया जाए, कैसे उसको किया जाए, रिसर्च को कैसे शेयरिंग बेस्ड बनाया जाए। आजकल बहुत अच्छा सा प्रोविजन चला है कंसल्टेंसी का, और इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशंस के बीच छोटा छोटा एमओयू साइन करके एक एक्सचेंज प्रोग्राम कर लेते हैं, बच्चों को भी वहां ले जाते हैं, घुमा देते हैं, थोड़ा ना थोड़ा इसका फर्क पड़ता है। तो इसमें भी आईक्यूएसी का बहुत अहम रोल है, और इसको आईक्यूएसी देखती भी है और देखना भी चाहिए। बस मैं खत्म करने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। कुछ इसके फंक्शंस हैं आईक्यूएसी के, जिसमें वो एक पैरामीटर से तैयार करे, एक बेंचमार्क तैयार करे। जैसे मान के चलिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, जब मैं बिहार में यहाँ 2006 में ज्वाइन किया, और 2015 में मैं बस खत्म कर रहा हूँ, 2015 में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया, तो हमने चार चीज बनाया। पहली चार चीज जो उस वक्त में बहुत खराब लगती थी। पहला, कि किसी भी तरह का पैसा जो है वो कैश में कोई किसी को नहीं देगा इंस्टीट्यूशंस में, जो भी होगा वो अकाउंट से होगा। दूसरा, कि एग्जाम में किसी भी तरह का नकल अगर कुछ भी मिल जाए तो उसको देर एंड देयर एक्सपेल कर देना। तीसरा, कि अटेंडेंस से हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना हो। और चौथा, कि कैरेक्टर से हम कभी किसी भी तरह की शिकायत हो तो हम जो इंटरनल कंप्लेन सेल है उस पर हम फौरी एक्शन लेंगे। ये चार ही चीज जो है हमने उस वक्त बनाया। अब वो चार चीज लगभग लगभग चल निकला। अब जो आईक्यूएसी है उनके पास बेनता सेल है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, टाइम टेबल का फुल्ली ये है, जो जेनरिक सब्जेक्ट है उसका कैसे इस्तेमाल हो वो है। तो बहुत सारी चीज जो है वो बेंचमार्क पैरामीटर्स इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी आईक्यूएसी को तैयार करना होगा। एक जो है लर्नर सेंट्रिक इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस में हमें बनाना होगा, और हम बनाते भी हैं, कोशिश भी करना होगा। क्योंकि देखिए, इंस्टीट्यूशन इज फॉर द स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूशंस में जब तक स्टूडेंट्स का अपना ओन ऑनरशिप नहीं होगा, ओन नहीं करेंगे, उसको वो अपना नहीं समझेंगे, तब तक उनको मजा नहीं आएगा, तब तक वो फ्री होके नहीं बोलेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे पीएचडी के या एमएड के स्टूडेंट्स आके मुझको कहते हैं, अगर मैं कोई मशवरा उनसे डिस्कस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर आप होते प्रिंसिपल, तुम होते तो क्या करते बताओ, मैं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा सर, हम ये करते ये करते ये करते। तो ये देखिए, उनके पास ये फ्रीडम अगर है, ये ऑटोनॉमी है, तो उनके पास दिमाग हमसे अच्छा तो है ही। तो उसके बाद जो इन्वायरमेंट बनता है इंस्टीट्यूशंस का, वो मुझे लगता है कि थोड़ा मजा देगा, वो ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा। उसके लिए थोड़ा हम टीचर्स को थोड़ा दिल को बड़ा करना होगा। फीडबैक में स्टूडेंट्स के फीडबैक का क्या प्रोविजन है, ये लगभग इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ
इस मामले में काफी कमजोर हैं, वेयर स्टूडेंट्स फ्रीली गिव फीडबैक टू द टीचर्स दैट यू आर नॉट टीचिंग वेल, या यू शुड टीच लाइक दिस एंड यू शुड यूज दिस मेथड सर, ऐसा करना चाहिए। ऐसा प्रोविजन अपने यहाँ कम है। हम लोग ने भी एक फॉर्मेलिटी अपनाया है, ऑनलाइन फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, बट जो एक फ्रीडम ऑफ जो होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल दिल की बात बच्चों की आ जाए उस कागज पे, इसके लिए अच्छा सा कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम लोग को पता चले कि वेयर वी स्टैंड इन द फील्ड, वेयर वी स्टैंड इन द क्राउड ऑफ द, मतलब अपने कॉलेज में हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये एक टीचिंग में हम पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं, वो तो पता चलता है। और बच्चे का जब फीडबैक आएगा फ्री होके, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक उसमें गुंजाइश होगा। ये इंटरनेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल इसको यूज कर सकते हैं। एक और करके बस मैं थोड़ा सा ये देखिए, ये एक बहुत अहम है, और ये अपने टीचर्स के लिए भी बहुत अहम है। पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी पाई जाती है। मेनी गुड स्कॉलर्स आर वेरी वीक इन डॉक्यूमेंटेशन से। आपका एक अच्छा स्कॉलर होना अलग बात है, आपका डॉक्यूमेंटेशन साउंड होना अलग बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात को खत्म कर दूं कि मैं जब एसोसिएट कर निकला हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो 300 नंबर का उनको वो चाहिए था एपीआई, अब वो मेरे पास था नहीं। तो मेरे एक बहुत जूनियर टीचर ने मुझसे पूछा कि सर आप एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि मैं करता, लेकिन वो नहीं है, क्या कहते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ना, वो नहीं है। तो उसने कहा कि कितना चाहिए सर। तो मैंने कहा कि उसमें एसोसिएट के लिए 300 मांग रहा है। तो उसने कहा कि आपका 500 तो मेरे पास होगा। अब ये मजाक था, लेकिन आप सच बताऊं, 3-4 दिन में वो कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके जो मेरे पास था वो मांगा। वो जो मेरा कागज पत्तर सब वो जो जानते थे उसको रिकॉल किए, और सब कलेक्ट करके वो लगभग 700 बना, 700। और मैं फर्स्ट टाइम में क्या कहते हैं उसको, एसोसिएट हो गया। आज से मतलब मुझे 10 साल होने को आया प्रोफेसरशिप में, और एसोसिएट में भी मैं बहुत जल्दी हो गया अपने हिसाब से। सिर्फ उस टीचर्स का एहसान है कि उसने डॉक्यूमेंट इतना अच्छा किया कि मेरा पॉइंट दे दिया। अदरवाइज आपको पता है, जैसे मैं एपीआई देखा, 10 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, मैं बुरी तरीके डर गया, क्योंकि मैं कॉलेज का काम करता था, प्रिंसिपल के पीछे हाँ हाँ करता रहता था। सो आई केम टू नो दैट इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू अरेंज एकेडमिक से तो उतना मजा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। बट दैट टीचर्स प्रोवाइडेड that so much material. So what I mean to say that these situations prevail everywhere in one extent and other extent. तो उसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अनलेस यू हैव गुड इन डॉक्यूमेंटेशन यू कैन नॉट प्रोड्यूस। आपके जाने के बाद हु विल सी इट। तो थोड़ा सा ना इस पे किताब लिखने पे, डॉक्यूमेंट करने पे कभी कभी शो ऑफ लगता है, बट कभी कभी उसकी जरूरत होती है। सो व्हाट इज माय सजेशंस फॉर IQAC एंड फॉर यू पीपल आल्सो, दैट व्हाटएवर यू डू यू डॉक्यूमेंट इट इन ए प्रॉपर वे। और आज तो वो डिजी लॉकर आ गया है और क्या क्या आ गया है, सो यू कैन हैव इट इन ए सेफ वे। तो उसको, एक हमारा साथी जो है, ये बता के थोड़ा मजेदार बात है खत्म करूं, कि वो इंटरव्यू देने गया। अब उसका जो अटैची है वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट में दूसरी जगह पहुंच गया। अब नतीजा है कि वो खाली हाथ इंटरव्यू देने गया। अब उसको जो है जहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो अलाउ नहीं किया। Then he called to the some senior faculty persons and he called to the vice chancellor. So vice chancellor allowed him, but you know that it was allowing not for selection, just for console, क्या कहते हैं उसको, कंसोल करने के लिए। So this is what to say कि आपका उसके पास भी आप अपना रख लीजिए कागज पत्तर से अच्छा से। IQAC जो है वो एक नोडल एजेंसी की तरह यूज होती है, और IQAC का जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बहुत सिंसियर, सीरियस और सबकी बात को सुनने वाला होता है। जिसको लोग कहते हैं कि डरपोक है, कमजोर है, लेकिन वो सीनियर आदमी होता है, उसके पास पैसेंस होता है, उसके पास हिम्मत होता है, ताकि वो सबकी बात को ले ले। सभी टीचर से उसका सामान को ले लेना ये अजूबा चीज है। और अपना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का एक्रीडेशंस में ग्रेडिंग इस वजह से भी कम आ पाता है कि हम अपने टीचर से सब कुछ अच्छी तरह से लेने में कामयाब नहीं होते हैं। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स,
to give your best and to provide all the things whatever you have to the IQAC coordinator, and to have a good relationship with the IQAC coordinator. At the same time IQAC coordinator को अपनी अन्ना को छोड़ के इंस्टीट्यूशंस के भलाई के लिए सभी टीचर्स से बहुत अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरह से बनाने के लिए मेंटेनेंस के लिए भी IQAC के कोऑर्डिनेटर्स को ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ एनुअल जो रिपोर्ट होता है वो जो है नैक हर साल मांगती है, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट। उसके लिए भी IQAC को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, वो खूबसूरती से बनाना चाहिए। एक बेनिफिट है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपका सवाल भी आ जाए लास्ट में। बस ये बात मैं कह के खत्म करता हूँ। जस्ट दो यू ऑल आर ऑनेस्ट, बट रिपीटेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि वी शुड have a very positive and clear mind, and we should understand ourselves that we are a teacher, we are a teacher। we should forget that हम IS होते, हम क्या होते, हम प्राइम मिनिस्टर भूल जाए। now we are a teacher and teaching in a college and in a university, so we should know our work and we should be committed and be honest to our profession। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ ऑल ऑफ अस, खासकर मैं प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल के लिए ज्यादा। एंड ऑल्सो ट्राई टू नो योर सेल्फ, हैव सम टाइम एंड ट्राई टू नो योर सेल्फ। कहते हैं ना कि बिगिनिंग ऑफ नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, कि विजडम की शुरुआत वहां से होती है जहां से आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज, आज के इस उथल पुथल भाग दौड़ की जिंदगी में हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट यू, कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप में सबसे अनमोल है, उसका पूरा अच्छा से यूज कीजिए ताकि उससे सबको फायदा हो। आप पूरी तरह से अधूरे हैं अपनी जिंदगी में जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं जानेंगे। आपके जिंदगी का सबसे अनमोल गहना, सबसे बड़ा ज्वेलरी, सबसे बड़ा रतन जो है वो आपका स्टूडेंट है। सो ट्राई टू नो योर स्टूडेंट्स। बेवजह का फैसला मत लीजिए, पैटर्नल इमोशंस रखिए और बच्चे को जानने की कोशिश कीजिए। वो आपको एक बार धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन 3 बार धोखा नहीं दे सकते हैं। सो डोंट बी dubious, doubtful, suspicious for your students। Be very open, be very clear, have full space in your heart for your students and try to know the students। This is what I want to say। And third thing is that जो मैं नहीं कर पाया बट आपको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि सब्जेक्ट को भी जानिए। सब्जेक्ट को अगर नहीं जानेंगे ना तो क्लास में आपको मजा नहीं आएगा। एक हमारे टीचर थे, वो हमारी बहुत मदद करते थे। कहते थे सर आपको क्या जरूरत है बताइए, मैं कर दूं, ये काम कर दूं, वो काम कर दूं। मैं समझ नहीं पाया कि इतना क्यों कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा ना नेट का इम्तिहान दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, कैसे मैं दे दूं इम्तिहान। अच्छा, हम लोग बिहार के आदमी थे, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन रट रटा के नेट पास कर गए थे। पहले ही चांस में जब एमएड कर रहे थे तभी हो गया था। और 1999 या 2000 नेट होने में फौरन नौकरी हो गई। तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत 23.5 साल में थोड़ा यंग टाइप का लगता था कि तेज होगा। तो उसको मैंने कहा कि आप इसके लिए क्या कोशिश करते हैं। तो उसने कहा कि मैं सर कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आप हमारा इम्तिहान दे दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल है। मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप डेली 1 घंटा मेरे साथ बैठिए, जो मैं जानता हूँ आपको बताता हूँ, आप नेट कर जाएंगे, आपके पास सब कुछ है। कहा कि नहीं मैं 40+ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कि 40 के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है, आप कर लेंगे। मैं बच्चों की तरह उनके साथ खेला और वो नेट कर लिए। उनके नेट करने में क्या हुआ पता है, मैं पढ़ लिया और उसके बाद से मैं फिर पढ़ाने की कोशिश करने लगा। सो दिस इज द ब्यूटी, कि आप नॉलेज शेयर करेंगे ना, नॉलेज बढ़ेगा और उसके लिए आपको पढ़ना होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने आप में बदसूरत लगेंगे, अच्छे नहीं, आप मतलब मैं खराब लगेंगे। सो द ब्यूटी लाइज इन योर नॉलेज एंड दैट इज एटलीस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट नॉलेज। सो हैव कमांड ओवर योर सब्जेक्ट, अदरवाइज बहुत मजा नहीं आएगा। और IQAC का मैं कह दिया कि उसके कोऑर्डिनेटर को आपको जरूर कोशिश करना चाहिए। और सोसाइटी का अपने ऊपर बहुत एहसान है।
पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी हम लोग को बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, बहुत अपेक्षाएं करती है। गांव का कोई बच्चा नीट कर जाता है तो हम जो है पूरा गांव उसका जश्न मनाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम गांव का जो सोसाइटी का जो हमारे ऊपर एहसान है उसको हम जो भी हमसे हो सके वो हम चुकाएं। हमारे जैसे कितने बच्चे सोसाइटी में अपने कहानी कहे बगैर खत्म हो जाते हैं, तो उनकी जो अनटोल्ड स्टोरी है उसको रिवील करने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जिंदगी आसानी से भी गुजर सकती है, थोड़ा मेहनत से भी गुजर सकती है। थोड़ा सा मेहनत करने में आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और आपके पास टाइम कम है, ये याद रखिए। 5-7 साल हो गया होगा पढ़ाई हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता आप एक वक्त आएगा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अलीगढ़ से आजमगढ़ जा रहा हूँ नौकरी ज्वाइन करने, 24 साल हो गए, है ना। तो एक वक्त आएगा कि आपको भी लगेगा कि 24 साल हो गए, फिर 40 साल भी हो जाएगा आपको नौकरी किए हुए। सो यू हैव a little time and more work. So this is my humble suggestion and with request to please start doing it from right now. This is what I want to share with all of you. Now, thank you very much for listening so patiently. Now it is open for all of us for discussions and suggestions. Thank you so much. Very nice presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Very much. impressive Thank you, sir. session, sir. Thank you, Sir, sir. namaste. Ask the Thank question. you. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Just a minute. We have a questions from ma'am side. Yes, ma'am. Any question from the side of the participants? This is the Okay. time for 5 minutes more. Please ask any question. If you कोई सवाल पूछना हो किसी को तो सर से पूछ लीजिए। Sir, namaste. I am नमस्कार Shubhasit. नमस्कार जी बोलिए जी जी सर। बताइए। Hello. Hello, sir. Sir, कोई question नहीं है. But just I want to say one thing, sir. You was in the NCT inspection team around 2014, 15, 16. Yeah. I'm Sir, also NCT team and I'm also NAC team. बहुत सारी yes, चीज मुझे वक्त से पहले मिल गई। यस, थैंक yes. यू। So, sir, I spent 2 days time with you that time in 2016 during an inspection of a composite college. And I have learned so many things that time of documentation, and that is very, very, very impressive for us. And we are running our college after inspection. We got the affiliation. We are running that college, composite college. That time I Thank you was so much. associated with that college in Nice, Midnapur. nice to listen it from you and meeting you, sir. Thank you so much. Yes, and last time I see up to Bardwan station also. So that was a great memory for me. Hello sir, I have one question. थैंक यू। एनी क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है? I have one question. Sir, I have a question. Yes, please, Dr. Sohini. Yes. Sir, as you beautifully have said that beauty lies in the knowledge, from that point only I want to ask a question. Like in India, especially in India, postdoctorate is not given that weightage. It's just like a feather in your hat and no increment and nothing is given. And it's not encouraged, both in college and in otherwise also. So don't you think, sir, this is bad? Actually, if we speak freely, we see that our participation in our system is not up to the mark as much as our participation should be. That is not. And so far promotion is concerned, so far weightage is concerned, so far encouragement is concerned, I also said that even in cash, even in promotions, which is our basic right, delay means denial of the encouragement. And you are very right that postdoctorate fellowship is not given due encouragement and due incentives. But you know that day by day we are
going upward, not we are going to downward. So let us hope that they will come. Wherever we will go, we will take this initiative. We will keep this word in the platform, and naturally it should be given, so that encouragement should be at every platform, from school to the higher level. There must be a provision of incentive and encouragement. So this is what I agree with you, rather than answering it. Hello, sir. I have one question. Hello. Yes, ma'am. Yes, sir. I am Dr. Chandrani from Calcutta Girls BT College in Kolkata. I have one question, sir, regarding the accreditation of B.Ed colleges. I am in B.Ed college. So I just want to know, can an institution have two accreditation bodies, like B.Ed colleges need to have the NCT accreditation and also NAC? So both are important for Yes, the yes, B.Ed ma'am. colleges. Yeah, I got your point. See, NAC is for accreditations, and B.Ed for recognitions. So B.Ed is not giving you accreditations. B.Ed is just saying that you fulfill the instructional and infrastructure facilities. If you fulfill, then it gives you the permission, recognitions, and approval to run your institutions. But you are running your institutions up to the mark. For that purpose, NAC come and assess you and accordingly accredit you. So these are two functions. NCT has its own functions and NAC has its own function, ma'am. Okay, thank you Thank so you. much, sir. Thank you, sir. So thank you very much, Professor Faiz. We are very enlightened by your lecture and very happy